Hello everyone. Hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here. And right now I'm going to bring you another video of your political science, which is entitled Political Parties. So students, in the last two lectures, we have consecutively discussed about the nature of the political parties. Why do we need political parties? We have studied in the very first lecture, and then after in the next lecture I had given you the meaning of the political parties. Right now I'm going to explain you, as I also had given you a task just to watch the pictures, the pictures or caricatures that had been given here in this book in the form of pictures. So please visit them all, try to let out the sense of all these pictures, and as it will also come in exams. So right now, in the last lecture I had told you the meaning of the political parties. Then I told you the partisanship, and after we had also discussed about the components of the political parties. Right now we are going to study about the functions of the political parties, right? Okay, so this is really a very crucial topic which I'm going to explain you right here. Functions of the political parties. Right students? So मैं अभिषेक तिवारी, ओके, वंस अगेन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू the functions of the political parties. Okay, so first let me tell you all the functions of the political party, which is a very crucial topic for the point of view of your exams. So sorry, so let's see the functions of the political parties, right? So as we were discussing, we were in a journey. हम एक जर्नी में थे कि why do we need a political party, हमें political parties की ज़रूरत क्यों होती है. Okay, now there's a question, what does a political party do? बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या है. लास्ट ईयर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और द पॉलिटिकल ग्रुप. ओके, हमने डिस्कस किया था कि एक ग्रुप ऑफ पीपल ना जब आपस में इकट्ठा होते हैं और जिनका इंटेंशन प्योरली क्या होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन करना, तो वो पॉलिटिकल पार्टी होती है. ओके, विनिंग द सीट एंड रूलिंग ओवर द पीपल. तो ये होता है इनका इंटेंशन. अब बात आती है कि व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टीज डू. ओके, सॉरी, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, क्या करती है एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी राइट हियर. सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेस. पहले अगर हम फंक्शंस की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, वो पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करती हैं एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर. और उसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑफिसेस को फिल करने के बाद पॉलिटिकल पावर्स को फंक्शन करती हैं. ओके, along with it, parties do so by performing a sense of functions, a series of functions. Okay, और इसके साथ साथ political parties, ये तो इसके minor functions हो गए. इसके साथ साथ political parties जो हैं वो कुछ major functions भी perform करते हैं. What are these major functions? Let's see one by one. All right, let's see. The first one is here given here, and this is parties contest elections. Okay, first function is party context elections, means parties जो होते हैं वो election contest करते हैं. The very first function of political parties are they contest elections. Okay, in most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Okay, so the most democracies, elections are fought mainly, अधिकतर democracies में जो elections होते हैं they are fought mainly among the candidates put up by political parties. तो ये political parties के द्वारा जो put up किए गए candidates होते हैं उनके द्वारा लड़े जाते हैं elections. Parties select their candidates in different ways. पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट करते हैं. दे हैव देयर स्क्रूटिनाइजिंग मेथड ऑफ अपॉइंटिंग देयर
कैंडिडेट्स इन सम कंट्रीज सच एज यूएसए, जैसे कि यूएसए वगैरह में क्या होता है, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट्स, वहाँ पार्टीज़ के अलावा मेंबर्स और सपोर्टर्स पार्टी के कैंडिडेट को चुनते हैं। नाउ मोर एंड मोर कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस मेथड, आज इस मेथड को, जो कि बहुत रिलेवेंट है, इसको बहुत से देश फॉलो करते हैं। इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया, टॉप पार्टी लीडर्स चूज कैंडिडेट्स फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। भारत जैसे देशों में और भी बहुत से देशों में यहाँ पे पार्टी लीडर्स, जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जो एकदम ऊंचाई पे बैठे हुए पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं वो चुनते हैं कि कौन यहाँ डाउन कैंडिडेट्स कौन होगा, उसको वो चुनते हैं, वो कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े होंगे। ओके, तो ये पहला हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। ऑलराइट, ओके okay students, so now let's move toward the second second function of the political parties. The second one is the second function of the political parties put forward different policies and programs. पार्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स लेकर के आगे आती हैं। ओके, एंड द वोटर्स चूज़ फ्रॉम देम, और जो वोटर्स होते हैं वो उनमें से चूज़ करते हैं, चुनते हैं। ओके, सो ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड विब्स ऑन व्हाट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। तो होता क्या है कि वोटर्स चूज़ करते हैं उन्हीं पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स में। अक्सर आप चुनाव में देखते हैं, चुनाव होने को होता है तो बहुत सी पार्टीज़ अपनी अपनी मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, उनमें से वोटर्स चूज़ करते हैं कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो अच्छा है, कौन सी पार्टी का नहीं है। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस, हम सब के अपने अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है, ऑन व्हाट पॉलिसीज़ आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी, कि समाज के लिए कौन सा बेहतर पॉलिसी है, कौन सा नहीं है। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ विब्स, लेकिन एक कंट्री में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी ऐसी सरकार नहीं होती है जो सभी डिफरेंट वैरायटी ऑफ विब्स को एक साथ हैंडल कर सके। सो इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलियर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर, इसलिए एक डेमोक्रेसी में बड़ी संख्या में जो क्या होते हैं, सिमिलर ओपिनियंस होते हैं। ओके, बड़ी संख्या में सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप्ड, एक जैसी ओपिनियंस को एक ग्रुप में करना होता है एक साथ, टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज़ कैन बी फॉर्मुलेटेड। ओके, कि जिस दिशा में उसको एक साथ ला करके एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चीज़ें पार्टीज़ की ओर से डिफरेंट वेव्स को टुगेदर, सिमिलर वेव्स को एक साथ ला के किया जाता है। दिस इज़ व्हाट अ पार्टीज़ डू, यही चीज़ पार्टीज़ करती हैं। अ पार्टी रिड्यूसेस द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस, एक पार्टी का काम होता है कि वो ढेर सारी जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस होती हैं उनको एक करे। ओके, अ फ्यू बेसिक पोजीशन इन विच इट सपोर्ट्स, ओके, कुछ बेसिक पोजीशंस होता है जिसको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। ओके, सो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस, देयरफॉर एक जो एक गवर्नमेंट होती है उससे उम्मीद की जाती है कि बेस इट्स पॉलिसीज़ की, वो अपनी पॉलिसीज़ को आधार दे ऑन द लाइन टेकन बाय रूलिंग पार्टी, जिस तरह से रूलिंग पार्टी चाहे उसके आधार पे गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ को बेस प्रोवाइड करे। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन स्टूडेंट्स ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को लेकर के आती हैं, उसमें से वोटर्स को पॉलिसी और प्रोग्राम जो सुटेबल हो वो चुनना होता है। उसके बेसिस पे वो पार्टी क्या करती है जो चुन करके आती है, वो मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियंस को यूनिफाई करती है, सिमिलर ओपिनियंस को एक साथ ला करके उनको रूलिंग पार्टी को प्रोवाइड करती है, जिससे वो पॉलिसी मेकिंग करते हैं। ऑलराइट, this is the second function. Next function is parties play a decisive role in making laws for the country. एक देश में कानून बनाने के लिए पार्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। Formally laws are debated and passed in the legislature. Formally क्या होता है कि laws आर डिबेटेड, जो कानून बनाने होते हैं उस पर डिबेट किए जाते हैं, उसको लेजिस्लेचर, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा कहते हैं, विधानसभा विधान परिषद कहते हैं, वहाँ से पास किया जाता है। बट सिंस द मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी, और क्योंकि सर्वाधिक मेंबर एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, दे गो बाय डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप, तो पार्टी के लीडरशिप की ओर से जो डायरेक्शन पास किया जाता है, जो डिसीजन पास किया जाता है, उसको सभी मेंबर्स को मानना होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस,
डिसीजंस उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियंस क्या है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो पार्टीज़ क्या होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ मेकिंग में, ठीक है। ये एक तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टी फॉर्म होती हैं और मिलकर के आपस में एक फॉर्म बनाती हैं और सरकार चलाती हैं, ठीक है। एज वी नोटेड लास्ट ईयर, द बिग पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं MP MLAs के द्वारा लिया जाता है। दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज से आती हैं। सो पार्टीज़ रिक्रूट लीडर्स, तो पार्टीज़ क्या करती हैं, वो लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, ट्रेन देम, उनको ट्रेनिंग देती हैं, एंड देन मेक देम मिनिस्टर, और फिर उनको मिनिस्टर बनाती है टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए उनको बनाते हैं। तो पार्टीज़ क्या होते हैं, पार्टी फॉर्म होती है और ये गवर्नमेंट्स रन करती हैं, ठीक है। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स को जीत करके सरकार बनाती हैं और इसके बाद ये सरकार को चलाती हैं। उसमें क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है उसको ये लोग क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं मिनिस्टर्स के रूप में, ओके। नेक्स्ट फंक्शन होता है, दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले अ रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टीज़ इलेक्शंस में हार जाते हैं, जैसे कई पार्टीज़ लड़ते हैं, जो पार्टीज़ हार जाती हैं वो हारी हुई पार्टी में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो रोल ऑफ अपोजिशन, मतलब सभी लोग रोल ऑफ अपोजिशन में बैठते हैं, मतलब अपोजिशन की भूमिका निभाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ा विपक्ष होता है जो हारी हुई पार्टियों में। सो टू द पार्टीज इन पावर बाई वॉइसिंग डिफरेंट विप्स, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग विप्स को सरकार के सामने उसके खिलाफ रखते हैं। जैसे अभी एग्रीकल्चर बिल के ऊपर बहुत विवाद हो रहा है, सरकार ने पास किया है, तो जो सरकार के अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो सरकार से इसको अमेंड करने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। सो क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर और रॉन्ग पॉलिसीज़, सरकार के फेल्योर और उसके रॉन्ग पॉलिसीज़ का विरोध करते हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ये मोबिलाइज करते हैं अपोजिशन को गवर्नमेंट चलाने में, ओके। सो नेक्स्ट फंक्शन होता है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस। पार्टीज़ जो होते हैं वो पब्लिक ओपिनियंस को शेप करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। पब्लिक ओपिनियंस को शेप करने का मतलब होता है कि जो लोगों की राय होती है उसको एक शेप देते हैं ये लोग, ठीक है। पार्टीज़ हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स, पार्टीज़ के पास लाखों मेंबर और एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरे देश में फैले होते हैं। तो बहुत से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हैं पूरे देश में, एक्सटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्सटेंशंस के रूप में काम करते हैं अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के अलग अलग सेक्शंस में। पार्टीज समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई पीपल। पार्टीज इसके साथ साथ कई कानून पास करती हैं जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उन सब को लेकर रेजोल्यूशंस पास करती है, उन सब को लेकर कुछ निर्णय पास करती हैं। ऑफन ओपिनियंस ऑफ द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टीज टेक, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोगों की ओपिनियंस को ही सरकार एक लॉ के रूप में फॉर्म करती है, तो पब्लिक ओपिनियंस को ही ना पार्टीज़ जो होती हैं वो शेप करती, उन्हीं को कानून के रूप में एक आकार देती हैं। तो ये भी एक काम हो गया पॉलिटिकल पार्टीज़ का। नेक्स्ट होता है नंबर 7, पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज़ क्या होती हैं, अपनी ओर से बहुत सी पॉलिसीज़ लाती हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज और वेलफेयर स्कीम्स में लोगों को शामिल होने का मौका देती हैं, ओके। इम्प्लीमेंटेड बाई गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए ये आसान होता है कि वो एक लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करे देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। एक गवर्नमेंट ऑफिसर के बजाय वो एक लोकल पार्टी लीडर को अप्रोच करे, ठीक है। ये उससे उम्मीद की जाती है। अक्सर होता है ना कि हम प्रधानमंत्री मोदी से बात नहीं करते, बल्कि हमारे एरिया के जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हम उनके थ्रू बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनको सुनाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज़, क्योंकि वो पार्टीज़ के क्लोज होते हैं इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम। और कभी कभी जब वो कम्प्लीटली उस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट ना करें तो भी वो क्या करते हैं कि वो अपनी ओर से उस अपने मेंबर्स को, जो विधायक सांसद होता है उसको ज़रूर अप्रोच करते रहते हैं। सो पार्टीज़ हैव टू बी
रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड्स है, इसलिए पार्टीज़ को लोगों की नीड को लेकर रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है और उनकी डिमांड्स को लेकर भी रिस्पॉन्सिव बनना पड़ता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट देम दोज पार्टीज़ इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, वरना क्या होगा कि अगले इलेक्शन में पार्टीज़ ऐसे कैंडिडेट को उनको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। इसलिए पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट मशीनरीज़ हैं, सरकार के जितने भी बॉडीज़ हैं जो फंक्शन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, और जो वेलफेयर स्कीम सरकार की ओर से, जैसे जनधन योजना, सुमंगला योजना, जैसे सौभाग्य योजना, ऐसे जो भी योजनाएं गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स आती हैं, उन सब में लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो, इसके लिए प्रयास करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। सो स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द टोटल नंबर ऑफ 7 functions that parties performs. Okay, so these all are this is what all about for today's lecture. Hope आपको ये lecture पसंद आया होगा. How did you feel this lecture? Please respond me the same. Till then, thank you. Have a good day.